الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا حرف ندا، بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، میرے وہ احسان، التی وہ جو کہ انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے تھے. یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہدی میرے ساتھ کیا گیا عہد، میرے ساتھ کیا گیا اقرار. اوفی بعہدکم، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ، عہد، اقرار. وَأَوْفُوا بعہدی اوفی بعہدکم اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو کہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو، یہ ایایا فرحبون اور مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا اور مان لو، ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ اس کو جو میں نے نازل کی، جو میں نے اتارا، مصدقاً سچ بتانے والی ہے، لما معکم اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اور مت ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، بھی اس کا، اور مت ہو اس میں سے اول منکر. ولا تکونوا اول کافر بہ اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر مت بن جاؤ. ولا تشتروا اور نہ لو، نہ بیچو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی. ولا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلا اور میری آیتوں کو معمولی قیمت لے کر نہ بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ سے بچتے رہو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور میرا ہی خوف رکھو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور مت ملاؤ حق کو، صحیح بات کو، الحق صحیح بات، بالباطل غلط بات سے، باطل سے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت چھپاؤ، ولا اس کے ساتھ بھی ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت چھپاؤ سچ کو، حق کو، صحیح بات کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جان بوجھ کر. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، مکس مت کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو. الفاظ ذرا دیکھیں پہلے اس کے. یا بنی اسرائیل، یہ پہلے میں نے کل اس پر بنی اسرائیل کے متعلق پوری بات آپ سے کی تھی، خلاصہ اس پوری بنی اسرائیل کی تاریخی باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عبداللہ، اسر کے معنی عبد اور ایل کے معنی الہ اور اللہ کے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے اور ان کی نسل سے یہودیوں کے 12 قبیلے ہوئے، اس لیے یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. لفظ اسرائیل جو ہے یہ عالم بھی ہے اور عجمی لفظ بھی ہے، تو عالمیت اور عجمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے. اگلا لفظ اس میں اسی آیت میں استعمال ہوا، اوفو بعہدی تم لوگ میرا عہد پورا کرو. یہاں عہد کو پورا کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایمان لا کر اطاعت اور فرمان برداری کرنا.
औफू ये बाब इफ़ाल से है, अमर का सीगा है, जमा मुज़क्कर हाजिर। इसका मस्दर क्या है? ईफाउन, ये असल में ईफायुन था, या को हमजे से बदल दिया। अहद के माने क्या? पुख्ता, वादा, कौल करार, और इसकी जमा उहूद आती है, अहद की जमा उहूद। ऊफी बिअहदिकुम, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। यहाँ अहद पूरा करने से बड़ा यह है कि अल्लाह ताला बेहतरीन अजर और सवाब से नवाजेंगे और तुम्हारी मगफिरत करेंगे। ऊफी ये बाब इफ़ाल ही से फ़ेल मुज़ारे मारूफ से वाहिद मुतकल्लिम जवाब अमर होने की वजह से जज़म की हालत में है। असल में ऊफी या के साथ था तो जज़म की वजह से या गिर गई। इय्या फरहबून, तुम लोग मुझ ही से डरो, तुम लोग मुझसे डरो। लफ्ज़ इय्या ज़मीर मंसूब मुनफसिल है, ज़मीर मंसूब या असल में था फरहबूनी, मुझसे डरो। यहाँ यह होता है कि इस ज़मीर जो मफ़ऊल होता है उसको मुक़द्दम जब किया जाए तो अरबी का कानून है कि वहाँ हसर और तख़सीस पैदा हो जाती है। इरहबूनी, मुझसे डरो, इय्या इरहबून, मुझ ही से डरो, और फा भी इसमें दाखिल किया कि सिर्फ और सिर्फ मुझसे डरो, किसी और से मत डरो। ये इरहबू का मफ़ऊल मुक़द्दम है। इसकी असल इबारत कुछ इस तरह होगी, इय्या फरहबून, फरहबूनी में फा जज़ाइया है, और फा जज़ाइया इस बात पर दलालत करती है कि यह कलाम शर्त के मानों को शामिल है। इसकी असल इबारत कुछ इस तरह होगी कि इन कुंतुम राहिबीन शैअन फरहबूनी, अगर किसी चीज से डरते हो तो मुझ ही से डरो। वला तकूनु, अगली आयत में ला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, तुम लोग कुरान के सबसे पहले इनकार करने वाले मत बनो। यह खिताब यहूदियों को है, हालांकि इनकार करने वाले तो पहले मुशरिकीन थे। यहाँ इनको मुखातब करके कहा जा रहा है कि भाई अव्वल ईमान लाने वाले तुम्हें होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी किताबों में सारा कुछ मौजूद था, ये सारी चीजें तुम्हें पता है, सब कुछ तुम जानते हो, लेकिन तुम ही इनकार करने वाले हो। समनन कलीला, थोड़ी कीमत, थोड़ा मुआवजा, यानी दुनियाई फायद को तरजीह न दो। मतलब इसका है कि दुनिया का साजो सामान चाहे जितना ज्यादा हो, कुरान के मुकाबले में, आखिरत के मुकाबले में वो थोड़ा ही है। समन कीमत, मुआवजा, आसमान उसकी जमा आती है, कलील थोड़ा, मामूली। इय्या फरहबून, तुम लोग मुझी से डरो, तुम लोग सिर्फ मुझसे डरो। इसकी तरकीब और तफसील भी जो ऊपर इय्या फरहबून में मैंने आपको बताई वही है। ये भी बाब इफ्तिआल से है, अमर का सीगा है, और इत्तिक़ाउन इसका मसदर है, इसका माना वाक़िउन है, नून वक़ाया है आखिर में। ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, तुम लोग हक को ना हक के साथ न मिलाओ। यहाँ हक से मुराद अल्लाह ताला का नज़ल किया हुआ कलाम है, और बातिल से मुराद यहूदियों की अपनी घड़ी हुई बात है। तौरात में उन लोगों का तरीका यही था कि वो अपने अगराज़ और मकासद के लिए गड़बड़ करते थे, उसको मिक्स करते थे। ला तलबिसु बाब ज़रबा से फेल नहीं है, सिग़ा जम मुज़क्कर हाजिर, लब्सुन मस्दर है इसका। तो देखें, या बनी इसराइल, ये पहले बनी इसराइल के बारे में आपको पूरी तफसील कल के सबक में पूरी बता दी गई थी कि इसराइल, यहाँ खिताब या बनी याकूब से भी किया जा सकता था, लेकिन यहाँ एक खिताब क्या है, या बनी इसराइल, ताकि उनको याद दिलाया जाए कि तुम्हारी निस्बत जिस बाप की तरफ है उसका नाम ही इसराइल था, यानी अल्लाह का बंदा, इबादत गुजार इतना कि उसका नाम ही पड़ गया था अल्लाह का बंदा। तो उनको, बनी इसराइल को यहाँ दावत दी जा रही है। और कुरान पाक में इन आयतों में सूरह बकरा की इस तफसील में आपने पढ़ा कि कुरान पाक के बारे में शुरू में बताया कि हुदल लिल मुत्तकीन है, और फिर लोगों के 3 ग्रुह बता दिए गए कि उनमें मुनाफिक, काफिर और ईमान वाले, और फिर उनको इज्तिमाई तौर पर दावत दी गई। और फिर उन दावत में यहाँ बनी इसराइल को खुसूसी तौर पर जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद अब मुखातब जो थे मदीना के लोग थे, और मदीना में जो मुशरिकीन थे वो तो ईमान ले आए, लेकिन ये जो बनी इसराइल है, यहूदी थे बस्तियों में, जो मैंने आपको बताया बनु नज़ीर, बनु कैनुक़ा और बनु क़ुरैज़ा और इस तरह के दूसरे यहूदी वहाँ मौजूद थे, उनको अब मुखातब किया जा रहा है इस अल्लाह के दीन की तरफ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की तरफ, दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ उनको दावत दी जा रही है। और इस दावत में आप देखेंगे कि शुरू में पहले रुकू में उनको प्यार मोहब्बत से तरगीब दी जा रही है, और फिर बाद में उनकी सरकशियां भी बयान की जाती है कि तुमने ऐसी सरकशी तुम्हारे बाप दादा ने की तो उनका अंजाम क्या हुआ, अल्लाह का उनके साथ रवैया क्या हुआ, और फिर तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। फिर उम्मत मोहम्मदिया को भी ये बताना है कि इस किस्म की सरकशियां तुमने की, इसीलिए ये वाक़यात जिक्र किए जाते हैं कुरान में, महफूज करके क़यामत तक के लिए बयान किए जा रहे हैं कि इसी तरह की सरकशियां अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। उज़्कुरू निअमती, मेरे नेमत को याद करो। अब वो कौन सी नेमत है, तो नेमत अल्लाह के आगे आएंगी इसी सिलसिले में कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो एक बड़ी नेमत तो अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत दी थी, फिर उनको फजीलत दी थी, फिर उनको तरह तरह की नेमतों से नवाजा गया। आगे इन आयात ही में आएगा वो
वअफ़ू अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर की है। अब इनामात याद दिलाकर उनको कहा जा रहा है कि मुनइम की बात माना करो, अभी जो नियामतें तुम्हें दिया करता है। वअफ़ू बिअहदी, यहाँ मेरे साथ किए गए अहद को पूरा करो। इसका मतलब यह है कि इन बनी इसराइल ने अल्लाह के साथ कोई अहद मुआहिदा भी किया था। उसका जिक्र कुरान पाक में आता है कि वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल वबअसना मिनहुम इस्नै अशरा नक़ीबा। आगे सूरह अल-माइदा में आता है, सूरह अल-माइदा में है, ये माइदा में है ना, हाँ सूरह माइदा में ये आयत है। और उसमें अल्लाह रब्बुल, तफसील वहाँ आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह के साथ इन्होंने वादा किया था, अल्लाह ने इनसे वादा लिया था कि वो अल्लाह को एक मानेंगे, रसूलों को मानेंगे, तालीमात को मानेंगे, नमाज कायम करेंगे, ज़कात दिया करेंगे। इन तमाम अहदों को वहाँ किया था उन्होंने। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुमने जो मेरे साथ वादा किया वो पूरा किया, तो मैं भी तुम्हारे साथ जो वादा किया क्या है, लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, कि मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। ये वादा मेरा है, तो वो मैं पूरा करूंगा। व इय्या फरहबून, और मुझी से डरो। रहब और आगे व इय्या फत्तकून का लफ्ज आता है। रहब और तकवा में फर्क ये है, दोनों खौफ के माने में आते हैं, लेकिन रहब जो दिल में खौफ हो, दिल में खौफ हो, और तकवा दिल में भी खौफ हो और जाहिरी अमल भी उस खौफ के मुताबिक फिर करे आदमी। तो दिल में खौफ भी मेरा ही होना चाहिए तुम्हारे अंदर, और दिल के खौफ के साथ साथ जाहिरी अमाल भी उसके मुताबिक तुम्हारे होने चाहिए। क्योंकि इन लोगों के यहाँ खौफ कुछ और था, इसलिए यहाँ इनको मुतवज्जह किया जा रहा है। खौफ क्या था उनका? इनका एक जिद थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मानने की, एक जिद थी और एक खौफ था। जिद क्या थी? जैसे कल मैंने अर्ज किया कि जिद तो ये थी कि ये मनसब बनु इसराइल ही को मिलने चाहिए थी। वो ये समझ रहे थे कि हम ही इसके मुस्तहिक हैं, बाकी को तो ये इंसान ही नहीं समझते थे। जिद उनकी ये थी कि मनसब बनु इसराइल से चला गया और बनु इस्माइल की तरफ चला गया। खौफ उनका क्या था? खौफ ये था कि हम अगर इस रसूल को माने जिसको हम पहचानते भी हैं, तो फिर हमारे अपने ही कबीले के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। एक ये खौफ था। दूसरा खौफ ये था कि भाई लोग हमें बड़े अल्लाह वाले समझकर अतियात देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो रुक जाएंगे, लोग तो बनी इस्माइल की तरफ चले जाएंगे, हमें तो छोड़ देंगे फिर लोग। और इस मनसब पर रहकर ये लोग दुनिया कमाते थे, इस दुनिया के चले जाने का खौफ इनका था। तो इसलिए बार बार उनसे कहा गया कि डरो, खौफ मुझी से करो। जब मेरे ऊपर ईमान लाते हो तो फिर इन पैसों और दुनिया के अगराज और लालचों के पीछे पड़ गए हो तुम। और आगे वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला कहा था कि छोटी सी कीमत दुनिया के अगराज के लिए मेरी आयतों को मत बेचा करो। इन लोगों की एक आदत भी ये थी, बेचते थे, लफ्जी तौर पर भी तहरीफ करके बेचते थे। तहरीफ है यहाँ असल में कि वो लोग जब कोई मसला बयान करना हो तो उसकी मर्जी का मसला उनको बताने के लिए उनसे कुछ लेकर उनको मर्जी का मसला बताते थे। कभी तो ऐसा करते कि उस तौरात के माने में तब्दीली करते थे, माना उल्टा सीधा अपनी तरफ से बयान करते थे, कभी अल्फाज ही को अपनी तरफ से शामिल करते थे। इसलिए तौरात अपनी असली शक्ल में बाकी नहीं रही, तौरात को इन्होंने गड़बड़ कर दिया था। वआमिनू बिमा अंज़लतु, और जो मैंने नाजिल किया उस पर ईमान लाओ, यानी कुरान पर। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, जो तुम्हारे पास किताब है, तौरात है, उसकी तस्दीक करती है। ये तो इससे मुराद क्या है कि तौरात जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है उसी में और कुरान में कोई टकराव नहीं है, उसको तस्दीक करती है। वो अलग बात है कि तौरात को इन्होंने जो बातिल उसमें शामिल करके अपनी तरफ से चीजें शामिल करें, तो वो तो किताब ही नहीं है ना, वो तो तौरात ही नहीं है, वो तो अपनी तरफ से शामिल की हुई चीज है। तो फरमाया कि वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और ईमान लाओ उस चीज पर जो मैंने नाजिल की, यानी कुरान की। मुसद्दिक़न जो तस्दीक करने वाली है, जो तुम्हारे पास है, इन तौरात की तस्दीक। तस्दीक करने का मतलब क्या है? उसको सच कहती है, सच्चा समझती है, सच्चा कहती है। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि अपनी ही तौरात पर वआमिनू बिमा अंज़लतु, जो मैंने नाजिल किया है तौरात में, उस पर ईमान लाओ। और ये नबी जो आया है ये उस तौरात की तस्दीक कर रहा है, क्योंकि वहां तुम्हें बताया गया कि आखिर रसूल आएगा, तो ये तो उसकी तस्दीक कर रहा है, उसको सच बताने के लिए आया है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, और सबसे पहले इसके मुनकिर मत बनो। यानी अव्वल तो तुम्हें ईमान लाना चाहिए था, तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद था, तुम्हें सब कुछ मालूम था, और तुम ही उसका इनकार कर रहे हो, तो पहले काफिर बन रहे हो उसको। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये दुनिया के अगराज व मकासिद के लिए तहरीफ लफ्जी कभी करते थे, कभी तारीफ मानवी करके इन आयतों को गड़बड़ करते थे। तो इस तहरीफ से बचो, दुनिया के गर्ज और दुनिया चाहे सारी दे दी जाए तुम्हें, वो तो समन कलील है ना, तो उसके मुकाबले में वइया फत्तकून, और मुझी से डरो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और बातिल को हक के साथ मिक्स मत करो। ये मसले मसाइल बयान करने के लिए क्या करते थे? अपने अगराज और मकासिद के लिए ये अल्लाह ने फरमाया है कहकर अपनी तरफ से चीजें उसमें शामिल करते थे। वतक्तुमुल हक़्क़, और तुम हक को छुपाते हो। हक क्या है? सबसे बड़ा हक तो इस वक्त जो तुम्हारे सामने है कि तुम्हारी तौरात में इस नबी के बारे में बताया गया है, वो अभी बनफ्स नफ्सी आपके सामने मौजूद है, तो उसको मत छुपाओ। वहां तुम तालमून, और तुम जानते भी हो, जानबूझकर छुपाते हो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग जानते थे। कुरान में आगे आएगा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, कि उसको ऐसे पहचानते जैसे आदमी अपने बेटे को पहचानता है।
یہ تفصیل سمجھنا گئی پوری. ہاں جی بیٹا. اور مت بیچو میری آیتوں کو ثمناً قلیلا، تھوڑی کم قیمت پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں، بیچیں. تو یہاں تحریف مراد ہے. تحریف چاہے ساری دنیا ہو تو اس کے مقابلے میں تو اللہ کے کلام کے مقابلے میں تو ثمن قلیل ہے نا وہ. سمجھ گئے؟ اور کوئی بات ٹھیک ہے، کریں ترجمہ.